Hello everyone, welcome to this lecture series on Indian Contract Act. If you are looking for a quick overview, this may not be the series for you. This course is designed to go far beyond the bare act provisions. We'll break down every concept, explore the reasoning behind the law, discuss judicial interpretations, exceptions, practical illustrations, and the subtle nuances that are overlooked often. Instead of simply helping you memorizing sections, my aim is to help you truly understand and apply the law with confidence. By the end of the series, you will have a comprehensive and conceptually strong understanding of the Contract Act that will serve you in your examinations, practice, and beyond. So, let us begin our journey into one of the most fundamental and fascinating branches of law, the law of contracts. So, this act is called the Indian Contract Act of 1872. This act was enacted on 25th April 1872. So, first of all, I would like to ask you people to kindly sit with your barracks open and with your earphones on, and also with your notebook and pen, so that um, you will be able to take down the important points. So kindly note this date, that it was enforced, this act was enforced on 1st September 1872. And if you see the preamble of it, it says that this basically this act defines and amend, this act defines and amend the law relating to the contracts. Why not consolidate? Yes, because it is not the exhaustive law pertaining to contract, as there are other laws also, like partnership, sales of goods, insurance, etc. So this is not an exhaustive law on contract. It deals with the um, basic principles of contracts, basically, right? So yeah, this is the first lecture on it, and in this lecture we are going to begin from our section 2 onwards, that is interpretation clauses. So interpretation of this section 2 carrying 10 definitions, starting from proposal. So proposal is the word used in Indian Contract Act, whereas you find offer in English law. So if you see offer in your question paper, you just understand that this is the synonym used for proposal. I am going to use English as the prime language. However, sometime I am also going to explain things in Hindi. So yes, let's begin with the introduction. As you understand that Indian Contract Act defined the term proposal, also known as offer. It is very first step in the formation of a valid contract, because every contract begins with a proposal. Without a proposal, there can be no acceptance, and without acceptance, no agreement, no contract can exist, right? So, what is the statutory definition that is provided in our Bare Act of proposal? It is provided in section 2A, which says that when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing thing with a view to obtain assent of that person, that other person, to such act or abstinence, he is said to make a proposal. So this one person, why it is written this one person? Because this person has to be a certain person, this person has to be a specific person, definite person. So he signifies means to communicate, to express. To whom? To another person, right? His willingness to do something, that is some positive act, or to abstain from doing anything, that is negative act, with a view to obtain the assent of that other person. Which person? This person. To such act or abstinence. Which act? This act, to do or abstain from doing anything. He is said to make a proposal, right? So up here is the simple
version of this definition, which says that a proposal means that one person expresses willingness to do something or not to do something with the intention of obtaining consent of other person. Once the other person accepts the proposal, it becomes promise under section 2b. But in this video we are going to stick to section 2a only, to clause a, right? So if we see an example that Rahul says to Aman, I will sell my motorcycle for 80,000. So Rahul is making a proposal because he is expressing his willingness to sell his motorcycle and expects Aman to agree. If Aman says I accept, then the proposal becomes a promise. ठीक है? So अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, वर्ड बाय वर्ड जो इसमें लिखा है हम उसको we will delve deep into each phrase used. So mark this word, when one person, so this one person, this is crucial. ठीक है, आपको अपने आंसर में वन पर्सन पे एम्फेसिस देना है. ठीक है, देयर माइट बी चिल्ड्रन हु मे नॉट बी पेइंग हीड टू दिस फ्रेज, दैट वन पर्सन. So a proposal must originate from one person. और ये one person कौन होगा? ये एक specific person है. The person making the proposal is called promiser or offerer. The person to whom it is made, it is called promisee. Well, it is given in section 2 sub clause C, but अभी we are not concerned with this. But ठीक है, देख लो अब आप एक बार. So a proposal can be made by an individual, that is a natural person, a private company, that is a legal entity or a legal person or a juristic person, a partnership firm, a government company, a legal representative or any competent legal person, right? So अभी आप jurisprudence पढ़ेंगे तो आप उसमें concept पढ़ेंगे personality. So there are persons of two kind, that is natural and legal. ठीक है, natural is as you know human beings, right? और legal कैसे होते हैं? Who are having legal identity. और इनका main trait क्या है कि they both of them can sue and can be sued. ये केस दायर कर सकते हैं किसी के खिलाफ और इनके खिलाफ भी कोई केस दायर कर सकता है. इससे मतलब है कि इनके पास राइट है और इनकी कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू रवि, सो हेयर कंपनी इज़ हु? ऑफरर. ठीक है, प्रॉमिसर. और रवि कौन है? ऑफरी, प्रॉमिसी. ठीक है. सो द कंपनी इज़ द ऑफरर, दैट इज़ प्रपोजर, एंड रवि इज़ द ऑफरी, दैट इज़ द प्रॉमिसी. सिग्निफाइज. ठीक है, signifies means communicate, to express. So a proposal is complete merely because a proposal is not complete. A proposal is not complete merely because it exists in someone's mind. Just because किसी के मन में कोई ऑफ़र है तो वो ऑफ़र तब तक ऑफ़र नहीं माना जाएगा जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करता. ठीक है, अगर वो अपने माइंड में बैठा हुआ है उसको, इफ़ as long as it is going to be his mental resolve, it cannot be termed as offer, because सामने वाला कोई अंतर्यामी नहीं है जो उसको पहचान लेगा कि इसके मन में ये ऑफर चल रहा है और हमें एक्सेप्टेंस देनी है. सो वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल. there might be exceptions, we are not concerned with that, but we being normal human beings, we will stick to the usual and reasonable manner. So the willingness must be communicated. ठीक है. So communication किसके थ्रू? It may be through spoken words, it may be through written words, it may be through act or omission. Act, you know, positive act, omission is negative act. Electronic communication, any recognized usual reasonable method. देखें, अभी मैं आपको इसको और थोड़ा, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे जाके you will be in a comfortable position about this concept. So if we see the example of a valid communication, so I offer to sell my laptop for 40,000. so this is communicated, मैंने express कर दिया orally. ठीक है, उसमें मैंने अपनी willingness क्या बताई है? to sell
माई लैपटॉप फॉर 40,000, और जिसको मैं ऑफ़र दे रही हूँ मैं किस इंटेंशन से, विद अ व्यू टू ऑब्टेन हिज असेंट, ताकि सामने वाले मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, मेरी इंटेंशन ये है. तो दैट इज़ अ वैलिड कम्युनिकेशन. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड कम्युनिकेशन. सो ए डिसाइड्स इन हिज माइंड दैट ही वॉन्ट्स टू सेल हिज हाउस बट नेवर इन्फॉर्म्स एनी वन. ए अपना घर बेचना चाहता है मगर उसने उसके बारे में किसी को जिक्र ही नहीं करा है. तो जब उसने कोई प्रपोजल ही नहीं दिया है तो फिर कहाँ से कोई उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी. So this is not a proposal because willingness has to be communicated. It has, but in this case it has not been communicated. So therefore it is not a proposal. So the essential rule of proposal is that proposal cannot exist without communication. You must signify, you must express the offer. Now comes the third ingredient, that is his willingness. So this is one of the most important element of this definition. It signifies the offerer's genuine intention to enter into a legal relationship upon acceptance. मतलब कि वो उसकी कैसी इंटेंशन है, एक जेन्युइन इंटेंशन है टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप. वो यहाँ पे कोई जोक नहीं क्रैक कर रहा है, वो यहाँ पर कोई लूज टॉक्स नहीं कर रहा है. अगर वो ये कह रहा है कि मैं बेचना चाहता हूँ अपना प्लॉट, कार और वट एवर, या अभी हम आगे देखेंगे पॉजिटिव और लाइक टू डू समथिंग और टू नॉट टू डू समथिंग, इसको भी मैं आगे क्लियर करूँगी. बट जस्ट यू अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ कि उसकी उसकी इंटेंशन है कि हम एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर हो. लीगल रिलेशनशिप बोले तो जिसको आप कोर्ट में एनफोर्स करा सको. ठीक है, अगर मानो ए ने ऑफ़र दिया कि मैं अपना लैपटॉप 40,000 का बेचना चाहता हूँ, दिस इज़ ऑफ़र. बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके आई एग्री. अब अगर बी नहीं उसको पेमेंट कर रहा है विद इन रीजनेबल टाइम, तो फिर वो जाके उसको कोर्ट में जाके सू कर सकता है कि मेरे को इसने मेरा ऑफ़र को एक्सेप्ट करा है फॉर दिस मच ऑफ अमाउंट, काइंडली इसको एनफोर्स करा जाए, इसकी परफॉर्मेंस कराई जाए. ठीक है. So the willingness must be real, it must be definite and communicated to other person. It should not be a mere joke or a casual statement, mere inquiry or expression of future intention. For example, I am willing to sell my car for 5 lakh. This expresses willingness that he is willing to sell his car. Mere statement would be I may sell my car one day. तो यहाँ पे बहुत वेगनेस है. देयर इज़ नो दिस इज़ नॉट अ डेफिनेट स्टेटमेंट. सो इट इज़ मियरली एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर इंटेंशन. इफ समबडी वुड टेल यू दैट I can sell you Taj Mahal for 1,000 rupees only, so obviously this can't be a proposal because you would take it a joke or you would take this person very lightly. और अगर मानो अगर आपने सोचा भी इसको लीगली एनफोर्स कराने की, सो कोर्ट वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कम ऑन, हाउ कैन यू आस्क हिम टू सेल यू अ ताजमहल. इसने कह दिया और आपने मान लिया और आप ये सोच रहे हो कि कोर्ट भी इसको एनफोर्स कराए. सो या, सो नाउ द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज टू डू एनीथिंग. सो टू डू एनीथिंग से हमारा मतलब है that person's willingness may relate to doing an act. मतलब कुछ एक्ट करने से, पॉजिटिव एक्ट, कुछ एफर्ट्स करने से. पॉजिटिव एक्ट से मेरा मतलब है कि कुछ करना. सो एक्ट में इन्वॉल्व सेलिंग सम गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सेलिंग अ हाउस और सप्लाइंग मशीनरी, कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, रिपेयरिंग अ व्हीकल. ठीक है, टीचिंग अ कोर्स, प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी. तो बेसिकली वही आपको कुछ गुड्स बेचना या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो इसमें वो एक्शन कर रहा है. सो दिस इज़ एन एक्ट जिसमें कोई कुछ कर रहा है. सो ऑल दीज इन्वॉल्व्स डूइंग समथिंग, whereas to abstain from doing anything. So the proposal may also involve not doing something. Abstinence means refraining from an act. This is equally recognized by law. Example देखें, I promise not to sue you if you pay 50,000. A ने B की कार में से एक्सीडेंट हो गया
और डैमेज हो गया, तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपको कोर्ट में नहीं घसीटूंगा, अगर आप प्रोवाइडेड जो मेरा खर्चा है उसको बेयर कर लो, मेरे को 50,000 दे दो। तो अगर आप मुझे 50,000 देते हो तो आई प्रॉमिस यू आई विल नॉट सू यू। तो यहाँ पर वो एब्सटेन कर रहा है, सो ही प्रॉमिसेस हिम दैट ही विल नॉट डू व्हाट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल नॉट बिल्ड अबव 3 floors इफ यू परचेज दिस लैंड। ठीक है, आई शैल नॉट डिस्क्लोज योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। आई विल नॉट ओपन अनदर रेस्टोरेंट इन दिस लोकेलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने फ्रेंचाइजी ली है मैकडोनल्ड्स की, ठीक है, तो मैकडोनल्ड्स उसको प्रॉमिस करेगा कि ठीक है, आप हमसे ले रहे हो फ्रेंचाइजी, हम आपकी विसिनिटी में, आपके आसपास से, सपोज़ आपके 1 किलोमीटर के रेडियस में हम किसी दूसरे इंसान को फ्रेंचाइजी नहीं देंगे। सो दे विल एब्सटेन देमसेल्व्स फ्रॉम डूइंग something, that is giving franchisee. So all these involves in abstinence. So why abstinence is important? Because many contracts are based upon negative promise. For example, अगर किसी ने किसी को गुडविल बेची है अपनी, ठीक है, अभी आप आगे एग्जाम्पल सेक्शन 27 आएगा जिसमें है कि आप किसी को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते ट्रेड करने के लिए ऑफ एनी काइंड। हाउएवर गुडविल इज़ एन एक्सेप्शन। अगर किसी ने आपको अपनी गुडविल बेची है तो आप उसको बोल सकते हो कि आप हमारे कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं कर सकते फॉर सम टाइम और इन दिस एरिया, तो वो वैलिड माना जाएगा। सो कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स, so therefore the act includes both positive and negative acts. Now is it clear to you people? So next is with a view to. So this phrase means for the purpose of or with the intention of. The willingness must not be accidental. ठीक है, मतलब उसे पता है कि वो क्या कह रहा है, क्या प्रपोजल दे रहा है। नथिंग इज एक्सीडेंटल, इट इन्वॉल्व्स हिज इंटेंशन टू डू, हिज इंटेंशन टू गेट इनटू अ लीगल रिलेशनशिप. So it must not be expressed for obtaining acceptance. Example, अगर ए कहता है कि I will sell my land to you, if, तो you understand here is his willingness. If A merely says it casually without expecting acceptance, there is no proposal. But अगर ये बोल रहा है I will sell my land to you, he is showing some seriousness basically. Obtaining the assent is the next phrase used in this definition. Assent means an agreement, an approval, or acceptance depending upon the offer. So the proposal is made only because the proposer, that is one who is making an offerer, he expects the acceptance. So he expects the other party to agree with him, to approve his offer or to accept his offer. Next ingredient of that person, the proposal must be directed towards another person. ठीक है, अब ये जो another person है ना, ये कोई, it could be a specific person or it may be a general offer. There would not be, देखो ऑफ़र देने वाला तो स्पेसिफिक सर्टन पर्सन है, पर जिसको ऑफ़र दिया जा रहा है वो जनरल पब्लिक एट लार्ज भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं वो ऑफ़र किसी एक पर्टिकुलर इंसान को दिया जाए, वो आप पब्लिक को एट लार्ज भी दे सकते हो। अभी हम देखेंगे कैसे। तो वन पर्सन जो मैंने अभी आपको मार्क कराया है, जो हमारा ऑफरर है, प्रॉमिसर है, वो सर्टन है, बट जो हमारे प्रॉमिसी हैं वो सर्टन नहीं है, दे आर नॉट स्पेसिफिक पर्सन. So the proposal may be to an individual, to a specific company, to a class of persons, to the public at large. So proposal to specific person. I offer to sell my house to Ravi. Only Ravi can accept. जिसको हमने proposal दिया है वो ही accept करेगा. अगर A B से शादी करना चाहता है तो A B को propose करेगा will you marry me, तो उसके B ही उसका जवाब देगी yes और no. प्रोबेबली वो तो उसको yes ही सुनना चाहता है ना, वो तो चाहता है उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाए. सो
जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है एक्सेप्टेंस वो ही देगा। अब देखते हैं हम एक एग्जाम्पल प्रपोजल टू पब्लिक कैसे है। हु एवर, हमने किसी हमारा, आप देखते होंगे कि जो भी मेरा डॉगी ढूंढ के लेकर आएगा तो उसको ये रिवॉर्ड दिया जाएगा। कोई भी इस गुमशुदा इंसान को ढूंढ के लेकर आएगा या उसका पता बताएगा तो उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम जो ऑफ़र दे रहे हैं इस एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, तो वो पब्लिक एट लार्ज को दे रहे हैं, ना कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को। तो जो भी वो कंडीशन को फुलफ़िल कर देगा, जो भी उस डॉगी को ढूंढ देगा या वो स्पेसिफिक पर्सन को, जो लॉस्ट पर्सन है उसको ढूंढ देगा, तो इसका मतलब उसने परफॉर्म कर दी अपनी कंडीशन, और उसको अब मतलब अगर उसने कंडीशन परफॉर्म कर दी मतलब उसने हमारे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट इज टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। सो द असेंट शुड रिलेट एग्जैक्टली टू द एक्ट प्रपोज्ड. Acceptance must correspond with the proposal. This is known as the mirror image rule. For example, अगर मैंने बोला है कि I want to sell my laptop for 40,000, तो आपको मुझे उसी 40,000 पे आपने मुझे असेंट देना है। ठीक है, कि ओके आई एग्री टू बाय योर लैपटॉप फॉर 40,000. सो दिस इज़ प्रपोजल एंड दैट इज़ एक्सेप्टेंस. मगर अगर आपने बोला कि ओके ठीक है, बट आई एम विलिंग टू पे ओनली 38,000, आर यू कंफर्टेबल टू सेल इट फॉर 38,000, यहाँ पर आपने उसको काउंटर प्रपोजल दिया है। ठीक है, आपने उसने जो आपको प्रपोजल दिया था 40,000 का, आपने उसको एज इट इज़ को आपने उसको असेंट देना है। अगर आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो तो इट मीन्स दैट यू हैव नॉट एक्सेप्टेड, इट मीन्स यू हैव रिजेक्टेड, रादर यू हैव गिवन अ काउंटर प्रपोजल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल सेल माई कार फॉर 4 लाख, तो आई एक्सेप्ट इट, मतलब जिसको मैंने अगर ऑफर दिया है, ए बोलता है बी को दैट आई विल सेल माई कार फॉर 4 लाख, तो बी सेज ओके आई एक्सेप्ट इट, तो दिस इज़ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। मगर अगर बी ने बोला है कि आई एक्सेप्टेड फॉर 3 लाख रुपीज़, मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट मोर देन 3 लाख, तब यहाँ पर एक्सेप्टेंस हुई नहीं है, यहाँ तो काउंटर ऑफर दिया गया है। नाउ लेट्स see the very important and crucial topic, that is what is proposal, that is offer and invitation to offer. Offer और invitation to offer में क्या difference है? It is not the same one and the same thing. ठीक है, क्योंकि ये तो है final willingness कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये नहीं करना चाहता हूँ, ये तो final offer है। पर invitation to negotiate है, invitation to offer, कि आप मुझे ऑफ़र दो। हम सामने वाले को बोलते हैं कि आप आइए और आप मुझे ऑफ़र दीजिए। ठीक है। सेकेंड इज दैट कैन बी एक्सेप्टेड डायरेक्टली, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड डायरेक्टली। मैं आपको अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगी, बट एक बार इसके फिलहाल पॉइंट्स देखिए। इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन अपॉन एक्सेप्टेंस, इट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दी है मतलब आप लीगल रिलेशनशिप में एंटर हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर अब आपको अपना पार्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं परफॉर्म करेंगे तो सामने वाला जो बंदा है दैट इज़ प्रपोजर और ऑफरर, वो आपको सू कर सकता है, कोर्ट में घसीट सकता है ऑफर को एनफोर्स कराने के लिए। यहाँ पर कोई लीगल रिलेशन मतलब कोई लीगल रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इट वॉज नॉट एन ऑफर, इट वॉज इन्विटेशन टू ऑफर। It is governed by section 2 clause A. It is nowhere defined in the act. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखें इन्विटेशन टू ऑफर के, दैट इज एडवर्टीजमेंट, कैटलॉग, डिस्प्ले ऑफ गुड्स, ऑक्शन नोटिस, प्राइस लिस्ट, टेंडर नोटिस, रेस्टोरेंट मेन्यू, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट डिस्प्ले। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेस्टोरेंट गए हैं किसी और आपने मेन्यू देखा और उसमें बोला कि मुझे तो सरसों का साग और मक्के की रोटी खानी है। वो बोलेगा जी सर यहाँ सीज़न नहीं है, तो अभी तो मैं आपको नहीं बना कर दे सकता, मतलब दिस इज़ नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ बिकॉज इट इज़ नॉट द सीज़न ऑफ द सेम। तो यहाँ पर जो कस्टमर है उसने इन्विटेशन टू ऑफ़र दिया है, उसने ऑफ़र नहीं दिया है इस केस, मतलब सॉरी, जिसने मेन्यू दैट इज़ रेस्टोरेंट ने आपको ऑफ़र नहीं कर रहा है। मेन्यू इज़ नॉट दी ऑफ़र, ठीक है, मेन्यू इज़ इन्विटेशन टू ऑफ़र, कि आप उनको ऑफ़र दें कि आपको क्या क्या खाना है। अगर जो अवेलेबल नहीं है उसमें
तो आप इंसिस्ट नहीं कर सकते उनको, और आप ये नहीं बोल सकते कि आपने मुझे ऑफ़र दिया और मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, आपने मुझे इसमें लिखा हुआ है कि मक्के की रोटी सरसों का साग है, ये ऑफ़र है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब मुझे किसी भी हालात में मक्की की रोटी सरसों का साग ला कर दो, नहीं तो मैं आपको सू कर दूंगा। नो, यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज कोर्ट में अगर आप जाएंगे भी तो कोर्ट कहेगा भाई दैट इज़ नॉट एन ऑफर, दैट इज़ इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, अब आइए जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज। पहला है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये 1893 का केस है। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी होती है, वो एक एडवर्टाइजमेंट करती है कि आप हमारा ये पिल्स को कंज्यूम करें, ठीक है, और मतलब उसने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं, ऐसे ऐसे आप करके इस पिल को इतनी क्वांटिटी में इतने टाइम्स अ वीक लें, और अगर आपको इसके बावजूद भी इन्फ्लुएंज़ा इन्फेक्ट करता है तो हम आपको इतना अमाउंट पे करने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, अब कंपनी ने अपनी इंटेंशन दिखाने के लिए कि भाई वी आर सीरियस अबाउट दिस, ठीक है, अपनी विलिंगनेस दिखाने के लिए पर्टेनिंग टू दिस ऑफर, वो 1000 पाउंड बैंक में डिपॉजिट भी कर देते हैं। तो मिसेस कार्ल नाम की एक लेडी होती हैं, ये इस स्मोक बॉल कंपनी जो है कार्बोलिक स्मोक बॉल, इसकी जो मेडिसिन है उसको कंज्यूम करती है इन अ राइट वे, राइट प्रोपोर्शन एंड एवरीथिंग। शी हैज़ परफॉर्म्ड द कंडीशंस वेल, ठीक है। शी क्लेम्ड द रिवॉर्ड, क्योंकि वो उसके बाद भी इन्फ्लुएंजा से अफेक्टेड हो जाती हैं, तो फिर वो आती हैं, वो क्लेम करती है। तो यहाँ पर कंपनी थोड़ा स्मार्ट प्ले करती है, बोलती है भाई आपने हमें तो एक्सेप्टेंस दी नहीं, हमने ऑफ़र दिया पर आप आकर हमें एक्सेप्टेंस तो देते। तो यहाँ पर कोर्ट ने डिसाइड करा, so the issue involved was the advertisement merely an invitation or a proposal? क्या वो सिर्फ एक invitation to offer है या फिर वो offer है? क्योंकि अगर वो offer है और acceptance है सामने वाले से तो फिर legal relationship, whereas invitation to offer में there is no legal relationship established। तो judgment में क्या आया? The court held that it was a general offer। in fact इसको हटाओ आप। So it was held that it was a general offer। It was held that it was a general offer to the public। तब कोर्ट्स नहीं होते थे ना, प्रिवी काउंसिल्स वगैरह होते थे, सो दैट्स वाई, बिकॉज ये 1893 का केस है और हमारा सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ है 1950s में। तो 1950 से पहले जितने भी आप देखोगे केसेस, किंग, एम्प्रर, क्वीन और ठीक है ऐसे होंगे। सो यहाँ पर मिसेस कार्लिल एक्सेप्टेड इट बाय परफॉर्मिंग द कंडीशन। अगर आप सेक्शन 8 देखो, ठीक है, जस्ट ओपन इट अप एंड आप देखो, यहाँ पर एक्सेप्टेंस होती है अगर आपने कंडीशन परफॉर्म कर दी है तो इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है। सो यू कैन ऑल्सो रीड दिस विथ सेक्शन 8, दिस केस लॉ यू कैन ऑल्सो रीड विथ सेक्शन 8। तो यहाँ पर बोला कि भाई जो मिसेस कार्लिल है, आपके बताए हुए गाइडलाइंस उन्होंने फॉलो करे हैं, और इसका मतलब अगर उन्होंने कंडीशन को परफॉर्म करा है, इट मीन्स दैट शी हैज़ एक्सेप्टेड द ऑफर, एंड सिंस शी हैज़ एक्सेप्टेड द ऑफर, नाउ द लीगल रिलेशनशिप हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड बिटवीन यू टू, नाउ यू आर ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल योर प्रॉमिस। ठीक है, सो यहाँ पर प्रपोजल में बी मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। सो जो टू अनदर पर्सन है ना, ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये to that other person, so this other person can be a public at large, not required कि वो एक specific person हो। this another could be a public at large, it could be a human being also, it could be a human being also, but public, it could be a public also, it could be some company, right? तो इसमें समझ आया, इसमें ये डिसाइड किया, इसमें जो प्रिंसिपल हेल्ड हुआ वो ये था कि अ प्रपोजल मे बी मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, सो इट इज़ कॉल्ड जनरल ऑफर।
नेक्स्ट इज़ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, बहुत बार एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। और अगर आप अभी अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो यू आर रिक्वायर्ड टू यूज़ जो भी मैं अभी आपको केस लॉज बता रही हूँ, इनको लिख लो, ज़रूर लिख कर आने हैं, बिकॉज दीज आर लैंडमार्क केसेस। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है डिफेंडेंट, उसका नेफ्यू खो जाता है। तो जैसे ही नेफ्यू खोया तो ऑब्वियसली जैसे ही बच्चा खो गया तो घर के सारे लोग ढूंढने लग गए, इंक्लूडिंग द सर्वेंट ऑल्सो। पीछे से जो डिफेंडेंट है उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिया कि भाई, उन्होंने मतलब जनरल ऑफर दे दिया कि भाई जो भी ढूंढ के लेकर आएगा तो मैं उसको XYZ अमाउंट का इनाम दूंगा। आई थिंक 500, इट इज़ नॉट रेलिवेंट कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता हो, से सपोज 5000 दूंगा। तो सर्वेंट ढूंढ के लिए आता है, तो सर्वेंट बोलता है मालिक अब मेरा रिवॉर्ड बनता है। तो वो बोलते हैं भाई तुमको मैंने ऑफ़र कहाँ दिया था, तुम्हें कहाँ नॉलेज थी ऑफ़र की, जब तुम्हारे को ऑफ़र ही नहीं था तो तुमने एक्सेप्टेंस ही नहीं दी। ठीक है, इसका मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि उसको सिग्निफाई करना है, कम्युनिकेट करना है, उसको एक्सप्रेस करना है अपना ऑफ़र। पर यहाँ पर तो डिफेंडेंट ने अपने सर्वेंट को किसी भी तरीके से कम्युनिकेट ही नहीं करा ऑफ़र। तो जब ऑफ़र कम्युनिकेट नहीं हुआ तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं मानी जाएगी। जो ऑफर ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस किस बात की। सो अ सर्वेंट सर्च्ड फॉर हिज मास्टर्स मिसिंग नेफ्यू। अननोन टू हिम मास्टर हैड अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड। आफ्टर फाइंडिंग द बॉय द सर्वेंट क्लेम्ड द रिवॉर्ड। सो जजमेंट वॉज कि भाई नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं फॉर्म हुआ है, बिकॉज द सर्वेंट हैड नो नॉलेज ऑफ द प्रपोजल वाइल परफॉर्मिंग द एक्ट। सो दिस परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट इज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या लेट डाउन हुआ, दैट नॉलेज ऑफ प्रपोजल इज एसेंशियल। सो दिस नॉलेज, और ये नॉलेज कब आएगी, इफ़ यू सिग्निफाई टू द ऑफरी योर प्रपोजल। हार्वी वर्सेस फेसी, ये 1893 का एक इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, बट आई हैव ट्राई टू पुट इट इन सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स। तो हार्वी नाम का एक इंसान होता है जो टेलीग्राम भेजता है फेसी को कि भाई विल यू सेल योर प्रॉपर्टी, और अगर तुम विल यू सेल योर प्रॉपर्टी क्वेश्चन मार्क एंड टेलीग्राफ लोएस्ट प्राइस। तो फेसी रिप्लाई करता है लोएस्ट प्राइस इज 900 पाउंड। हार्वे रिप्लाई करता है आई एक्सेप्ट। तो इट वॉज डिसाइडेड बाय प्रिवी काउंसिल कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो मेयर रिप्लाई है ना, मतलब जो उसने रिप्लाई में सिर्फ मियरली इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है, इट वॉज नॉट अ प्रपोजल फ्रॉम फेसी साइड। ठीक है, नाउ कम्स दी फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट 1953। अब 1953 कभी आप बोलो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, क्योंकि ये तो इंग्लिश केस है ये। ठीक है, ये इंडिया का केस नहीं है। फैक्ट्स क्या था भाई, गुड डिस्प्लेड थे ऑन शेल्फ्स। ठीक है, इशू क्या हुआ भाई, वॉज डिस्प्ले इटसेल्फ अ प्रपोजल। जजमेंट देखो क्या होता है ना कि एक इंसान जाता है केमिस्ट शॉप में, वो देखता है गुड्स डिस्प्लेड हैं, दवाइयाँ डिस्प्लेड हैं, वो जाके पिकअप करता है कोई मेडिसिन और जाकर उसको बोलता है कैशियर को कि भाई बिल बना दो। वो बोलता है सॉरी आई कैन नॉट गिव यू दिस मेडिसिन बिकॉज एज इट नीड्स प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती। तो वो क्या करता है, जो कस्टमर होता है वो सू कर देता है केमिस्ट को कि इसने ऑफ़र दिया मुझे ये डिस्प्ले करके, जब मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, पिकअप कर लिया, जब मैंने गुड्स पिकअप कर लिया और मैंने उसकी पेमेंट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने गुड्स ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये मुकर रहा है, अब ये बोल रहा है कि मतलब मैंने ऑफ़र ही नहीं दिया है। सो अब तब ये डिसाइड हुआ दैट जो गुड्स डिस्प्ले हैं इट इज़ जनरली एन इन्विटेशन टू ऑफ़र। क्योंकि ऐसे तो बिकॉज वी वांट टू सिंप्लीफाई थिंग्स, क्योंकि अदरवाइज बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अब आपको बताया कि अगर कोई रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पर मेन्यू में मक्की की रोटी सरसों का साग है, ठीक है, लेकिन अब सीज़न ही नहीं है, गर्मियाँ चल रही हैं, तो वो ये नहीं कह सकता, कस्टमर जाके रेस्टोरेंट को सू नहीं कर सकता कि आपने तो मुझे ऑफ़र दिया क्योंकि आपने मेन्यू में ये लिखा और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कि मैंने जब आपको ऑर्डर प्लेस करा है तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अब आपको दिए कहीं से भी लाकर मुझे देना पड़ेगा। मक्की की रोटी सरसों का साग ऑफ सीज़न में कहीं से भी लाकर दो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू सू यू। So no, you cannot sue because there is no establishment of legal relationship because there was no offer
it was mere an invitation to offer. Menu is merely an invitation to offer. So to make your life easy, kindly take the note of this list. और जो मैं आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, और अगर नहीं समझ आ रहा है एक बार में तो जाकर फिर से इसको देखें वीडियो को। तो इसमें क्या प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज जनरली एन इन्विटेशन टू ऑफर। सो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजल। ठीक है, फर्स्ट वी सी इट इज एक्सप्रेस्ड प्रपोजल। एक्सप्रेस से तो आप समझ ही पा रहे होगे कि आपने भाई वर्ड से एक्सप्रेस कर दिया या आपने एक रिटन नोट भेज दिया, तो दैट इज एक्सप्रेस्ड। इम्प्लाइड हो गया बाय कंडक्ट, जैसे कि अगर आपने कोई कंडीशन परफॉर्म कर दिया है, जैसे कि अगर मानो किसी ने वो इश्तिहार या वो एडवर्टीज़मेंट देख लिया था कि अगर जिसने भी मेरे डॉग को ढूंढा तो मैं उसको 5000 रिवॉर्ड दूंगा। अगर आपने वो कंडीशन परफॉर्म कर दी, उसका डॉग ढूंढ के लिया है, तो आपने मतलब बाय कंडक्ट आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया उसका प्रपोज़ल। ठीक है, अब इसका और एग्जांपल देख लो। इम्प्लाइड का क्या प्रपोजल एग्जांपल है इम्प्लाइड प्रपोजल का, जैसे बस स्टॉप पे खड़े हैं, ठीक है, और बस आके रुकती है और अपने दरवाजे खोलती है, इसका मतलब वो आपको ऑफ़र दे रही है, और अगर आप उसमें चढ़ जाते हो इसका मतलब आप उसे एक्सेप्टेंस दे रहे हो, अपनाओ, अपना पेमेंट आप करो। नाउ कम्स अ स्पेसिफिक प्रपोजल। स्पेसिफिक प्रपोजल इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, कि ए ने बी को ऑफ़र किया कि वो उसकी कार खरीद ले, तो यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन्स हैं, तो स्पेसिफिक प्रपोजल है। जनरल प्रपोजल इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, जैसे अभी मैंने आपको बताया वो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस। ठीक है, क्रॉस प्रपोजल क्या होता है, टू आइडेंटिकल प्रपोजल क्रॉसिंग ईच अदर, नो एक्सेप्टेंस नो कॉन्ट्रैक्ट। देखो ए और बी है, ए ने बी को चिट्ठी भेजी कि मैं अपनी कार आपको 2 लाख रुपीज़ की सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, इसने चिट्ठी भेज दी इसको। अब बी ने भी इसको चिट्ठी भेज दी कि क्या आप मुझे अपनी गाड़ी 2 लाख की बेचोगे। तो इट इज़ अबाउट कार, और अमाउंट कितना है, ₹2 लाख। सब्जेक्ट मैटर सेम है, दैट इज़ कार, और अमाउंट भी सेम है, तो एग्जैक्टली सेम ऑफर दे रहे हैं ना दोनों एक दूसरे को। ये कह रहा है आप मेरे से खरीदोगे, ये कह रहा है कि आप मुझे बेचोगे कार इतने की, तो आइडेंटिकल प्रपोजल्स हो गए, क्रॉसिंग ईच अदर। इसने इसको भेजा, इसने इसको भेजा, ये अनअवेयर था जब ये इसको पोस्ट कर रहा था, ये अनअवेयर था कि जब ये इसको पोस्ट कर रहा था, तो इसमें नो एक्सेप्टेंस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोनों ने क्रॉस ऑफर भेजा है तो आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो कोई ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं दी इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं फॉर्म हुआ है। अभी हम आगे और डिटेल में इनको पढ़ेंगे, बट चलो फिर भी मैं आपको एक क्रॉस ऑफर का एक केस बताती हूँ, जस्ट टेक नोट ऑफ इट। So it is tin versus Hoffman। ये 1873 का केस है। अब इसमें क्या हेल्ड हुआ था, प्रिंसिपल काइंडली टेक नोट ऑफ इट। इट वाज हेल्ड दैट there were only 2 cross offers। ठीक है, it was held that there were only 2 cross offers and the offer of neither of the parties having been accepted by the other, there was no contract which could be enforced। तो सिर्फ 2 क्रॉस ऑफर थे, ए ने बी को सेम ऑफर दिया, बी ने ए को सेम ऑफर दिया, मगर दोनों ने एक्सेप्टेंस नहीं दी थी। और जब तक आप कैटेगोरिकली अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस का कोई प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं दी गई,
क्योंकि ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस का कोई प्रोविजन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म हुआ जिसको आप एनफोर्स करा सको. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस लॉ. हाउएवर अब क्रॉस प्रपोजल्स का ज़माना गया. ये तब की बात है जब टेलीग्राम्स या फिर लेटर्स से कम्युनिकेट किया जाता था. Now what is standing proposal? Standing proposal is offer made continuously for future transaction, accepted repeatedly wherever orders are placed. जैसे आमतौर में जैसे समझो किसी की कोई शॉप है, ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर ब्रांड का कोई सामान आ रहा है तो वो भेजता जा रहा है और वो उसको एक्सेप्ट करता जा रहा है. उसे पता है उसकी पेमेंट आ जाएगी तो यहाँ पे वो भेज रहा है और ये कॉन्टिन्यूसली एक्सेप्ट कर रहा है. तो दिस इज स्टैंडिंग प्रपोजल. ठीक है. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको जॉट डाउन कर ले कि भाई की principles to remember pertaining to proposal, that a proposal is the first step in the formation of a contract. Mere intention does not amount to proposal unless communicated. ठीक है. A proposal may involve doing an act or abstaining from doing an act. मैंने आपको बता दिया positive and negative. It must be made with intention of obtaining the assent of the other party. A proposal can be expressed, implied, specific, general, cross, standing. और एक काउंटर मैंने आपको पढ़ाया, ऊपर देख लें. ठीक है. नॉलेज ऑफ प्रपोजल इज एसेंशियल. जब तक नॉलेज ही नहीं होगी प्रपोजल की तो एक्सेप्टेंस कहाँ से दी जाएगी, जो हमने देखा केस लालमन शुक्ला. Advertisement are generally invitation to offer, but they may amount to general offer if they clearly show an intention to be bound. So case law is Carlyle versus Carbolic smoke ball. So yeah, that's it for today. Do revise your notes, take down the notes and do revise them.